کلام کے بندہ کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں تو کلام کے کلام کو ہم ویلکم کریں. پریز ہاللویا. بے شک جب خداوند بولتا ہے وہ عجیب و جلالی کام کرتا ہے. ہمیں سو آج ایمان ہے کہ جب خداوند کا بندہ کلام سنائے گا، کلام شیئر کرے گا اور ہم کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت کو ریسیو کریں گے. پریز ہاللویا. ہاللویا ہاللویا. پریز گاڈ. ہاللویا. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. سلام. زندگی میں ہم انسان ہونے کے ناطے کئی دفعہ ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ سمجھنا اور جانچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ میری برکت کا ہے یا نہیں، یہ راستہ میری ترقی کا ہے یا نہیں. کس کی زندگی میں کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے؟ کسی کی زندگی میں نہیں ہوا کہ سب کی زندگی میں ہوا ہے. سب کی زندگی میں ہوا ہے کہ ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں. ہم خدا کے خدام کے پاس جاتے ہیں، بھائی تنویر کو کہتے ہیں کہ پاسٹر سلیمان کو کہتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں اس پرابلم میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. میں بھی اکثر پاسٹر تنویر کو کہتا ہوں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس راستہ پر جائیں. آیا کہ ہم اس ٹائم کہاں پر کھڑے ہیں؟ میری زندگی میں اگر بنجر پن ہے تو وہ کیوں ہے؟ ہم پوچھتے ہیں، ہم بار بار اپنے خداوند سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن ایک جو خاص بات ہے وہ ہم اپنی زندگی میں لانے سے ہمیشہ انکار کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے. عہد جدید میں سے غلطیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 29ویں آیت میں یوں الگم ہے، لکھا ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو، اگر تم مسیح کے ہو تم ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. ہاللویا. لیکن یہاں پر ایک خاص بات ہے، اگر تم مسیح کے ہو تو تم وارث ہو، تم ابراہیم کی تمام تر برکات کے وارث ہو. لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. ہم در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہم اپنا مقدر اس در کو بنا لیتے ہیں، اس جگہ کو بنا لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم مسیح ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم مسیح کے ہو. میں آپ کو اب عہد عتیق میں لے جانا چاہتا ہوں. لکھا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. آئیے اب ہم عہد عتیق میں جائیں گے کہ ابراہیم کی نسل میں کوئی ایک ایسی برکت دیکھیں گے جو اس نے بڑے غور سے، بڑی سمجھ سے ایک برکت کو ریسیو کیا. اس ٹائم وہ بھی ایک دوراہے پر تھا، اسے شاید سمجھ نہ آئی، اور اس کی نسل میں سے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر وہ دوراہے پر تھا. آئیے میرے ساتھ نکالیے عہد عتیق میں سے
पैदाइश की किताब और उसका 26 बाब और उसकी 12 आयत। मैं आपको बरकत के बारे में बताना चाहता हूं, उस बरकत के बारे में जो इब्राहिम की नस्ल ने पाई, और वो भी उस टाइम दो राह पर खड़ा था। लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदा ने उसे बरकत बख्शी। खुदा ने उसे बरकत बख्शी। ये कौन सा साल था? उसी साल। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये वो साल था जिस साल काल पड़ा, जिस साल बंजरपन था, जिस साल खाने को कुछ ना था, उगाने के लिए जगह वीरान थी। वो ये बरकत कैसे पाता है, इसके लिए देखेंगे इसी बात की पहली आयत। लिखा है, और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। अब इसहाक उस मुल्क में है जिस मुल्क में लिखा है, तब इसहाक जरार के फलस्तियों के बादशाह अभी मलक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। यहां पर इसहाक देखता है कि मैं शायद इस मुल्क में हूं, मुझे शायद यहां से चले जाना चाहिए। यहां पर काल पड़ चुका है, खाने को कुछ नहीं, पता नहीं 1 साल 2 साल 4 साल मुझे शायद गुजारा करना पड़े, लेकिन मैं यहां से कूच कर जाता हूं, मैं यहां से चला जाता हूं। अब वो एक दोराहे पर खड़ा है, मुझे यहां से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। उसी वक्त लिखा है कि खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा, खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा। उसने ये सोच लिया होगा, मैं अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाऊंगा, मैं यहां से कूच करूंगा मिस्र को। लेकिन शायद खुदा उसे बरकत देना चाहता था, वो बरकत जो इब्राहिम की नस्ल के लिए रखी हुई है। अब यहाँ पर वो खुदा के कलाम और उसकी आवाज को सुनता है, उसकी आवाज को सुनने पर वो अमल करता है। लिखा है, आगे लिखा है, अगर इसमें देखें तो बरकत जहां पर पढ़ेंगे 3 आयत से, तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा। पहली आयत अगर हम देखें जहां पर हमने अभी पढ़ा कि अगर तुम मसीह के हो तो तुम्हें इब्राहिम की नस्ल की सी बरकत बख्शूंगा। यहां पर अगर देखते हैं तो लिखा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और बरकत बख्शूंगा। उसकी नस्ल के साथ वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके हुक्म को मानना है। अब यहां पर 2 लोग हैं। कई दफा हम खानदानी तौर पर क्या करते हैं, हम चल रहे होते हैं, कौन 2 लोग, मियाँ बीवी, हम चल रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। एक कहता है कर लो, दूसरा कहता है ना ना अरे ना करो।
भी ऐसा काम है जो आपकी लाइफ में है, आप दो राहे पर खड़े हैं, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, पादरी साहब से पूछ लेते हैं। लेकिन यहां पर उसका साथी रिबका, वो भी खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी आवाज को सुनकर उसकी बरकत पा चुकी है। कैसे बरकत पा चुकी है? अगर 25वें बाब की 57 आयत में देखें तो लिखा है, उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा हाँ जाऊंगी। ये वो वाकया है जब रिबका को लेने इब्राहिम का नौकर आता है। यहां पर भी वो रिबका जान चुकी है कि खुदा की आवाज है, मुझे एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। यहां पर भी दो राह है, यहां पर भी वो सोच रही है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब उसके माँ बाप उसे बुलाते हैं, उसका भाई और उसकी माँ उसे बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि हाँ तू बता, तू क्या इसके साथ जाना चाहती है? उसने कहा, यही कहा होगा कि अगर मेरे खुदा की आवाज है, अगर मेरे बादशाह की आवाज है, अगर मेरे खुदा की आवाज है, तो मैं इस शख्स के साथ जाऊंगी और इसहाक के साथ अपना ब्याह करूंगी। हालेलुया। अब वो यहाँ पर अपने खुदा की आवाज सुनकर चल पड़ती है। उसके बाद उनकी शादी होती है। शादी के बाद अब ये मामला आ चुके हैं, वो अब जरार के मुल्क में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अब शाना बशाना खड़े हैं। अब शायद इसहाक उसको कहता होगा हम मिस्र को चले जाते हैं, लेकिन रिबका उसे कहती होगी कि नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए, हमारी बरकत यहीं पर है। हम जिंदगी में दो राह पर खड़े होते हैं, लेकिन हमें खुदा की आवाज को सुनना है, हमें उसकी बरकत को पाने के लिए उसकी आवाज को सुनना है। लिखा है 12वीं आयत में, इसहाक ने उसी मुल्क में खेती की जहां पर काल है, जहां पर बरकत नजर नहीं आती, हर तरफ बंजरपन है, लेकिन उसने उसी मुल्क में रहकर खेती की और बरकत क्या पाता है? लिखा है और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के उस कॉल को अपने अंदर बसा लेता है कि तू यहीं पर रह, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। हम आज इस दौर में हैं, हम इस फजल के दौर में हैं जहां पर फजीलत हमारा मुकद्दर है, जहां पर फजल हमारे साथ साथ है, लेकिन फिर भी हम दो राह पर खड़े होकर सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम जानते हुए भी कि मसीह के हैं, हम जानते भी हैं कि बरकत हमारा मुकद्दर है, हम उसके वारिस हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम अपनी आंखें और कान बंद कर देते हैं। हमारे साथ कई मौकों पर खुदा बोलता और कलाम करता है। यहाँ पर कई ऐसी जिंदगियां हैं जिनके साथ खुदा बोलता और कलाम करता है, जिनके लिए खुदा बोलता और कलाम करता है, अपने खुदाम के वसीले से बोलता है, पास्टर सुलेमान के वसीले से, पास्टर तबीर के वसीले से बोलता है। पास्टर्स हमेशा कहते हैं कि भाई ये जिंदगी में बरकत अगर पानी है तो इस तरह से आपको चलना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये जानते हुए कि हम मसीह के हैं, फिर भी हम उसके वारिस होना पसंद नहीं करते और फिर कहते हैं हमारी बरकत कहाँ है? जरूरी है कि हमें मसीह के होना है। अगर इसी के
शिक्षा को देखा जाए तो 26वीं आयत में गलतियों की लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। किसके फर्जंद हो? खुदा के फर्जंद हो। और आगे लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया है। ये मसीह के होने का एक तरीका और एक अमल है जो आप कर चुके हैं। आप मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा ले चुके हैं। अब आप मसीह के हैं, लेकिन मसीह के होते हुए भी हम बरकत क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। हम हमेशा नेगेटिव सोचे रखे हुए हैं। हम हमेशा अपनी लाइफ में उन बरकत को जो इब्राहिम की नस्ल के साथ हैं उनको क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। अगर इसमें देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर दूसरी और तीसरी आयत में देखें तो लिखा है, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। इब्राहिम से जो कसम खाई है, इब्राहिम की नस्ल दर नस्ल बरकत पाएगी। हम अगर उसके वारिस हैं मसीह में, तो हम उन बरकत के जो इब्राहिम की नस्ल के साथ हैं हम वारिस हैं, क्योंकि हम खुदा के वारिस हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं। कलामे हक में लिखा है, पहले यूहन्ना में उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अगर आप अपने आप को खुदा के फर्जंद मानते हैं, अगर मैं ये जान जाऊं कि मैं मसीह का हूं, अगर आप जान जाएं कि हम मसीह के हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत बरकत बाकी है। लिखा है, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। फर्जंद होंगे तो पता नहीं क्या कुछ होंगे, लेकिन हम अपने आप को खुदा के फर्जंद माने तो सही। हम एक दफा अपने आप को खुदा के साथ चलाएं तो सही, उसकी आवाज को सुने तो सही, तब हम उसकी बरकत को पाएंगे। हमारी जिंदगी में बंजरपन है, हमारी जिंदगी में बेरोजगारी है। शायद मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं। मैं तकरीबन 10 माह बिल्कुल बिना जॉब के रहा। मेरी बड़ी अच्छी जॉब थी, सब जानते हैं, पास्टर तनवीर जानते हैं, इवन मैं भी उस वक्त दोराहे पर था। मैंने तकरीबन 6 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। वहां से जब मैं मामलात ऐसे खराब हुए, मैंने पास्टर तनवीर को कहा कि पास्टर साहब मुझे बताएं, खुदा से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, मैंने रिजाइन किया, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। वहां पर मैंने तकरीबन 6 माह काम किया, लेकिन वहां पे मुझे निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं अगर काम करना चाहता हूं तो मुझे काम करने नहीं दिया जाता और बाद में मुझे निकाल दिया जाता है। खुदा मुझे बता मैं क्या करूं। मैं उस दोराहे पर था, मुझे समझ नहीं थी। सारा दिन निकल जाना, घर से बातें, मेरी बीवी भी दरी, घर से बातें, दोस्तों में सब लोग जॉब पर, बड़ी परेशानी। आपकी जिंदगी में भी इस तरह होगा, आप अपने आप को शायद अकेला समझते हो,
لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، جب آپ خدا ان کے کلام کو، اس کی آواز کو سننا شروع کرتے ہیں، تب خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 9 مہینے میں اس جاب کے بعد بالکل فلیٹ، کوئی جاب نہیں، کچھ بھی ذرائع نہیں، میں بالکل ویلا سو لیا۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے، میں یہاں پر تھا، یہاں سے ہم عبادت کے بعد ہم یہاں پر، میرا ایک بہنوئی ہے، ہم ان کے گھر گئے۔ مجھے کسی نے کہا PKLA میں اپلائی کریں، آپ اپلائی کریں۔ میں نے اس سے پوچھا یار جابز آئی ہیں؟ پاسٹر صاحب نے بھی مجھے کہا، پاسٹر سلیمان نے، کہتے آپ PKLA میں اپلائی کریں۔ میں بڑا مایوس ہو گیا، میں نے کہا اچھا چلو کر دیں گے۔ کیا، مجھے اپلائی کرنے کے بعد بھی 4 مہینے تک، تقریباً 4 ماہ تک مجھے جواب نہیں ہے۔ لیکن شاید خدا اور کچھ چاہتا تھا جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن خدا نے پھر مجھے وہاں پر جاب دی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں 2 راہ آتا ہے، لیکن خداوند آپ سے کسی نہ کسی وسیلے سے بات کرتا ہے۔ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا کہ خداوند کا روح آپ سے کیا کہتا ہے، کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا کہ آپ کو وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ پلیس جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں، کیا آپ کو وہاں ٹھہرے رہنا ہے یا وہاں سے کوچ کرنا ہے؟ کئی دفعہ میں بھی یہ سوچتا تھا، وہ تھی چنگا سی جتنا 6 سال لائے، لیکن خدا نے میری برکت یہاں پر کی تھی، میری برکت یہاں پر تھی، تو میں 2021 کے بعد 2023 میں یہاں پر پہنچا۔ سو ہمیں اپنے آپ کو خدا کی آواز کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اگر خدا کے خدام آپ کو کسی بھی جگہ پر کہتے ہیں تو اس کو یہ سوچ کر نہ چھوڑ دیا کریں کہ یہ تو میری برکت کے خلاف ہے۔ ہم اکثر خدا کو کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کیجئے گا کہ یہ کام میری زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جب خدا کے خادم کہتے ہیں کہ بہن جی، بھائی جی، یہ آپ کی زندگی میں یہ کام نہیں ہوگا، تو یہ کہنا دیکھا بھائی صاحب نے وہی گل جی میں سوچتی تھا نا، وہ کہی ہو غلط کہی ہو۔ جب ہم نیگیٹو اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں، ایک بہن ہے مجھے کہتی ہیں کہ میں پاسٹر تنویر کی ایک گواہی، چلے میں بتاتا ہوں۔ پاسٹر تنویر ایک گواہی بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ گجرانوالہ میں کسی خاندان میں بیٹھے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے رشتہ کیا۔ لیکن بھائی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی بھائی صاحب ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اب دعا کریں ان کے لیے۔ لیکن جب بھائی صاحب نے ان کو کہا کہ رشتہ نہ کرے ہو، تو پھر کہیں نے لے بھائی صاحب نے جو ہے غلط کہیں دے۔ لیکن جب 1 سال کے بعد وہ بات پوری ہوئی اور وہ برکت جو اس کو ملنا چاہیے تھی وہ نہ مل سکی، تب انہیں ریئلائز ہوا کہ خدا کے خادم صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچ لیتے ہیں جو ہمارا رستہ ہے، ہم اسی رستے پر جا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی بھی وہی ہونی چاہیے، جس رستے پر ہم جا رہے ہیں خدا کی مرضی بھی وہی ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ خدا آپ سے وہ فضل آپ پر کرنا چاہتا ہے جو آپ کا مقدر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے وہ فضل جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کا مقدر نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ خدا یسوع المسیح میرے اور آپ کے فیوچر کو جانتا ہے، لیکن تب جانتا ہے جب ہم مسیح کے ہیں۔ جب ہم مسیح کے نہیں ہیں
तो वो हमारे मुकद्दर से भी कोई नाता नहीं रखता। वो कहता है जिधर ये जा रहा है उधर चलता है। लेकिन अगर हम मसीह के हैं, हम उसकी रास्तबाजी को पूरा कर चुके हैं, तो हम खुदा के फजल यीशु मसीह के हैं। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को उसके ताबे कर दीजिए। शायद हम उसके फर्जंद मुंह से को कहलाते हैं, हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, लेकिन हम उसे मानते नहीं। हम उसको अपनी जिंदगी में रखते तो हैं, लेकिन हम अपने आप को पूरी तौर पर उसकी ताबे नहीं करते। सो वक्त है अपने आप को उसकी ताबे करने का, ताकि हम उसकी बरकत को लें। वो बरकत जो बंजरपन, जो काल हमारी जिंदगी में है, उस यीशु मसीह को अपने अंदर पा लेने से, उसकी आवाज को सुनने लेने से हम उस काल पर काबू पा सकते हैं। हम उस काल को अपनी जिंदगी में से उस बरकत में बदल सकते हैं जो हमेशा की बरकत है।